दोस्तों एपिसोड 3 में हमारे साथ है मृगांक रक्षित। वो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं भारत के, और एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर वो काम करते हैं क्लाउडसेक में। उनके पास्ट के बारे में बात की हमने, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की, उनके काम के बारे में बात किया हमने, और उनके व्यूज़ लिए बहुत सारी चीज़ों में। सो बहुत बहुत सारे अच्छे डिस्कशंस भी किए इस पॉडकास्ट में। ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए। सो सिट बैक, relax and acquire. Mriganka, welcome to the TSS. How are you? Hey, hi. Thanks. Hey, I'm fine. How about you, bro? Just fine, bro. अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो बस ब्रो चिल आउट ही कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। चिल आउट कर रहा हूँ रूम पे अपने। जस्ट चिलिंग आउट। ओके। मृगांका, आप साइबर रिसर्चर हो क्लाउड सेक में? या हाँ। अच्छा। एकदम ठीक अभी ठाक चल बस रहा है ज्वाइन सब? किया। हाँ ब्रो, काफी सही एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड दी एनवायरनमेंट एंड दी एटमॉस्फेयर वाइब बहुत सॉर्टेड है यहाँ पे। Like it's really all about hacking and like all about cybersecurity. So pretty much I'm enjoying the environment over here in CloudSec. हम्म। ठीक है। मृगांका, आप सिक्योरिटी रिसर्चर एज अ रोल का काम कर रहे हो क्लाउड सेक में। हाँ तो हाँ। आपका वो बताओ, हम्म। काम का वो मतलब क्या होता है एक्चुअली? सिक्योरिटी रिसर्चर का मतलब क्या होता है? क्या काम रहता है क्लाउड सेक में आपका? ये एक बार एक्सप्लेन करो। So basically, bro, the day-to-day task is all about tomorrow. It's a mixture of SD and as well as cybersecurity analyst. So तुम्हारा काम basically ये होता है कि like जो भी client है, you do a manual PT just to check कि जो टूल है, जो क्लाउड सेक का पर्सनल टूल लाइक जो उनका प्रोडक्ट है, just to check is there any false positive or not. If there is a false positive, then how to improve that within the tool so that दोबारा false positive ना दे. And another sort of check is there so that it sometimes happens सब तुम automated tools use करते हो या everyone uses in the cyber security field, but कभी कभार क्या होता है, some certain things get missed out. It might be a high vulnerability or it might be a very low hanging fruit, right? Just to check that कि ऐसे चीजें miss out ना हो, तो we approach it as a manual PT as well for the clients on their assets, just to check whether the tool has missed out anything or not. If it is missed out, then further we get into the aspect ki bro, like how do we automate this particular aspect so that जो tool है it gets like in further future ऐसी चीजें miss ना होए. So that's the whole job is all about, finding vulnerabilities, and if the tools, basically finding better vulnerabilities that tools are not able to pick up, and then modify the tool accordingly so that it picks up those vulnerabilities in further future. So tomorrow it's a like accumulation of both SD role and your cybersecurity analyst wala jo role hai. हम्म। Like hands-on job hai ye pura. ओके। And along that, if you are doing any kind of new exploit, आपका तो research वाला aspect है ही. So basically, mostly focus यहाँ पे है. As a security researcher, it's all about finding the high vulnerabilities. That too, like जहाँ पे business को actual impact पड़ रहा है. Like if it is a banking customer, the main impact that they will have is regarding the PII data that they have, right? So the basic main फंडा है कि हम देखते हैं कि कहाँ से लीक हो रहा है, कितना डेटा लीक हो रहा है. इफ इट इज लीकिंग, हाउ मच ऑफ डेटा वी कैन गेट फ्रॉम इट. समटाइम इट हैपेंस दैट वी कैन गेट अराउंड 1 TB, 1 TB ऑफ डेटा, कभी कभार 6 GB. इट का कभी कभार बस ईमेल मिलके वो हो जाता है, बट इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट दैट वी कैन शो टू द कस्टमर दैट this is the kind of information leakages there. And further अगर remote code execution मिल जाता है, then it's a totally different aspect altogether in a business logic. तो उस हिसाब से मेरा डे टू डे जॉब है. इट्स ऑल अबाउट, इट इज वेरी इंटेंसिव ऑन द रिसर्च एस्पेक्ट टू फाइंड न्यू vulnerabilities and incorporate within the tool that they have. Be Visual or X Visual and S Visual. S Visual is something they are working on right now.
It is completed and clients are also using it, but it's an ongoing process की और उस tool को iterate हो रही है basically while versions are getting iterated to make it much more better. यही है bro, job तो यही है. The JD is this. ग्रेट ग्रेटली डिस्क्राइब्ड योर जॉब ब्रॉडी. आपने एक शब्द का यूज़ किया, कुछ नेगेटिव. क्या क्या नेगेटिव था वो? फिर से एक बार बोलो. Uh, a false positive basically. हाँ, False positive. पॉजिटिव एक्चुअली. हाँ, ये इसका मतलब समझाओ एक बार. फॉल्स पॉजिटिव ये होता है कि बेसिकली तुम्हें टूल बता रहा है कि ब्रो देखो यहाँ पे एक्सेसेस है जस्ट बिकॉज इट इज शोइंग लाइक इट इज रिफ्लेक्टिंग. कभी कभार क्या होता है कि हम कभी कभार एरर पेज में रिफ्लेक्ट करता है कि ब्रो तुम जो ये पाथ सर्च कर रहे हो, पाथ और एनी सर्च क्वेरी तुम सर्च कर रहे हो एक्स वाई जेड इन फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट तुम्हें बता रहा है कि ब्रो ये ऐसा एक्स वाई जेड बोल के प्रोडक्ट कुछ है नहीं. ठीक है. And even if you put an, I'm just giving an example, ओके bro. ओके. मतलब I hope कि कोई ट्राई ना कर ले, नहीं. तो ब्लॉक ही हो जाएंगे बेसिकली. तो बेसिकली जस्ट एन एग्जांपल. सो कभी कभार क्या होता है कि आर्बिट्री पेलोड जो होते हैं, जो बेसिकली पेलोड्स होते हैं, वो अगर हम डाल भी देते हैं इन द एरर पेज, वो तुम्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, बट इट डजंट शोज यू अ पॉपअप. बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कुछ टूल्स तुम्हें बोलता है कि देयर इज एन रिफ्लेक्शन. इवन बर्बसूट डज दैट कि देयर माइट बी एन रिफ्लेक्शन, प्लीज चेक इट आउट. तो ऐसे चीजें को फॉल्स पॉजिटिव हम इसलिए कहते हैं कि बिकॉज देयर इज नो सिग्निफिकेंस टू इट. इट्स जस्ट अ वे, इट्स जस्ट अ इंटेंडेड वे हाउ द वेब एप्लीकेशन वर्किंग. वो उनका तरीका है हाउ टू हैंडल सच केसेस. तो ये एक टाइप का फॉल्स पॉजिटिव है. दैट्स व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ फॉल्स पॉजिटिव. कि टूल तुम्हें पॉजिटिव बता रहा है कि हाँ ये वनरेबिलिटी है यहाँ पे, बट द मोमेंट यू आर री-वेरीफाइंग इट जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये वनरेबिलिटी है या नहीं, तुम जाके देख रहे हो कि अच्छा ब्रो यहाँ पे तो है ही नहीं, जस्ट अ स्मॉल पॉइंटर कि अच्छा ये सर्च किया ये मिला नहीं. कभी कभार हम हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स के लिए चेक करते हैं, ऑटोमेटेड स्कैन चलाते हैं, वहां पे हमें कमेंट आउट सेक्शन में द मोमेंट पासवर्ड लिखा होता है हमें हिट मिल जाता है कि पासवर्ड वहां पे है, वहां पे पासवर्ड लीकेज हो रहा है. बट एक्चुअली हम जब चेक करते हैं तो बस कमेंट आउट किया हुआ है कि यूजर नीड्स टू पुट देयर ओन पासवर्ड. तो ये तो तुम्हारा फॉल्स पॉजिटिव हो गया, राइट? हाँ. सो दिस इज हाउ दैट्स व्हाट द फॉल्स पॉजिटिव मींस. ओके ओके. अभी ये ऐसे टेक्निकल बातें तो होती रहेंगी पूरे पॉडकास्ट के दौरान. हम्म. अभी थोड़े पास्ट में चलते हैं हम. पास्ट एकदम शुरू से बताओ. या ब्रो श्योर. शुरू कैसे किया आपने? आप कहाँ से हो? अभी फिलहाल कहाँ हो? सो सब. I am basically, my roots are from West Bengal, but hardly in the total my age is around 24. तो वहाँ से मुश्किल से 3 साल ही मैं वेस्ट बंगाल में था. Other than that, I have been to Chennai. Then for 6 years, I have done my like nursery LKG from Chennai. Then went back, went to Delhi, and वहाँ पे ही हम मतलब like I settled down. My dad got retired from Delhi itself. तो वहाँ पे तो स्कूलिंग नॉर्मल, मैं एयरफोर्स स्कूल से एयरफोर्स गोल्डन जुबली से पास आउट हूँ, 2017 बैच आउट. तो उसके बाद ब्रो फिर लाइक जेई मेंस भी दिया, बट आई वाज नेवर इनटू दैट कि भाई लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और समथिंग नॉट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन. तो कंप्यूटर साइंस ऐसा था कि अच्छा मतलब मेरे को मजा आता था. लाइक पापा के साथ आई यूज्ड टू बिल्ड कस्टम पीसीस विद डैड. तो ग्रेट. हार्डवेयर का पापा के साथ बैठ के नए नए पार्ट्स लेके आके उसको कॉन्फ़िगर करके देखते थे, टेस्ट आउट करते थे कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सब करते थे हम. सो दैट्स वेयर दैट नैक केम इनटू की कंप्यूटर साइंस बढ़िया लगता है. तो या दैट्स देन आई वेंट ऑन टू डू माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ. तो वहां पे तो क्या हुआ कि नॉर्मल जैसे नॉर्मल लोग लाइक कंप्यूटर साइंस वाले लोग कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह करना है. आई ऑल्सो डिड दैट फॉर कपल ऑफ इयर्स. फर्स्ट और सेकंड ईयर वही कर रहा था क्योंकि सबका वही फंडा होता है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो अच्छा नौकरी मिलता है. तो वन डे व्हाट हैपेंड दैट आई वाज वाचिंग अ सीरीज, लाइक सुना होगा मिस्टर रोबोट बोल के. हाँ हाँ हाँ.
हाँ, तो वो मैं देख रहा था तो पूरा भाई मतलब फुल ऑन मजा आ रहा था देख के। तो आई माय रूममेट वाज अनदर गाय, सार्थक धनेजा, सेटेन के नाम से उसका यूजर हैंडल है। ओके। तो व्हाट हैपेंड दैट कि मैंने सार्थक को बोला कि ब्रो ये तो हैकिंग वैकिंग ऐसे दिखाते हैं, असली में कुछ होता है क्या? लाइक आई डिडंट न्यू अबाउट हैकिंग फील्ड एट ऑल, लाइक जीरो आइडिया ब्रो। हाँ। सो उसने बोला कि चल दिल्ली चल, एक बिसाइड्स मीट है, चल। मैं बोला ठीक है ब्रो चलते हैं। लाइक देन आई वेंट देयर एंड लाइक ब्रो लाइक व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड देयर। लाइक आई जॉइन लाइक went to a meter like session. It was a hands-on technical session on car hacking. It was a ओह, car hacking ओके। session. तो बंदा लाइक सेकेंड फ्लोर से बैठ के मतलब कार को ऑन कर रहा है, दरवाजे खोल दे रहा है, लाइक ऊपर फैसिनेटिंग। नीचे हो रहा है। तो मेरा दिमाग तो फट गया वहां पे कि भाई ये तो गलत है बहुत, मतलब लाइक दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल स्टफ, आई नीड टू एक्सप्लोर दिस। तो वहां से वो कीड़ा चालू हुआ कि भाई देखते हैं, क्योंकि भाई सेकंड फ्लोर से कोई बंदा कार हैक कर रहा है, इट्स अ बिग डील ब्रो, जस्ट फॉर अस लाइक वी नर्ड्स, लाइक इट जस्ट ब्लोज आवर माइंड ब्रो, कर कैसे रहा है ये। तो वहां से ना एज अ दिमाग मतलब वो हो गया कि पगला गया यार, लाइक ब्रो हाउ हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो मैं वहां से फिर वहां पे थोड़ा नेटवर्किंग किया, लोगों से पूछा कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देन दे टोल्ड मी दैट पोर्ट स्विगर है, वन ओवैप्स के टॉप 10 है, ये बाकी सब पढ़ना स्टार्ट करो। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद लाइक सार्थक हेल्प मी आउट विद हैक द बॉक्स की बेसिक, लाइक हैक द बॉक्स तो मेरे लिए एकदम नया नया ही था। तो साथ इट वाज बैक देन, मैं तुम्हें बताता हूँ हैक द बॉक्स वाला सीन। लाइक हैक द बॉक्स का लॉग इन पेज नहीं होता था, यू हैव टू हाँ फाइंड दैट यूआरएल, हाँ। इंस्पेक्ट करके तुम्हें फाइंड करना होता है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब कुछ ही हो गया है कि लॉग इन करो अकेडमी वगैरह, बट उस टाइम पे वो भी अलग मजा था कि भाई इंस्पेक्ट करके वो यूआरएल निकालो, देन यू हिट इट। तो वो वाला एक था। तो दैट्स वेयर थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड गॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो मैं बोला चलो यार करते हैं। देन आई वाज जस्ट डूइंग इट एज अ हॉबी, आई वाज डूइंग इट एज अ हॉबी, हैकिंग काइंड ऑफ सब ये मैं बस हॉबी के हिसाब से, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत जग गया था मेरा, तो मैं करता रहता था, सीखता रहता था। हाँ। बट फिर मेरे को एक लाइक प्लेसमेंट मिल गया। मेरे को ऑब्वियसली लाइक कॉलेज के एंड में मेरे को एक प्लेसमेंट मिला था। कैंपस से मिला था? फॉर हाँ, क्या ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही था मेरा। अच्छा। बट वो एक्चुअली एसडी रोल था। तो एसडी रोल था तो मैंने लगभग कितना 4 या 5 महीने काम किया था वहां पे। आई डेंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो वही बस कोड लिखना, उसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा था, हम्म। मजा नहीं आ रहा था मेरे को करने में। क्योंकि वो मतलब बेसिकली क्या हो रहा था ना, किक नहीं मिल रहा था कि तुम कर रहे हो काम, बट यू नीड दैट लाइक अच्छा ब्रो दैट्स कूल, व्हाट आई एम डूइंग इट्स वेरी कूल। वो वाला एक किक नहीं मिल रहा था मेरे को। तो देन आई लेफ्ट दैट जॉब, लाइक इम्प्रोम्प्टो इम्प्रोम्प्टो था मेरा, मतलब मैंने छोड़ दिया, फॉर्च्यूना 500 कंपनी थी, छोड़ दिया मैंने। अच्छा। फिर मैं बस ऐसे ढूंढता रहा कि कोई लाइक एनीवन हाँ। इंटर्न हायर कर रही है नहीं साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए। सो देन आई गॉट इनटू वन स्मॉल वेरी स्मॉल कंपनी दैट वाज गिविंग साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। हम्म। तो वहां पे इट वाज इन नोएडा बेसिकली। तो वहां पे मैं काम करना स्टार्ट किया, फिर नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया, फिर मैं दोस्त बिसाइड्स वगैरह में जाने स्टार्ट किया दोस्तों के साथ। सो दैट्स हाउ माय होल थिंग स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को, मतलब मैं वो नहीं पूछता, मतलब मेरे अंदर का ये कीड़ा था कि हमेशा व्हाट्स द मेंटालिटी बिहाइंड फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। मेरे से मतलब मैं जिस टाइम सीख रहा था, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बंदे थे, लाइक दे वर एक्चुअली फाइंडिंग क्वाइट गुड बग्स। मतलब मेरा क्वेश्चन हमेशा बंदों से यही रहता था कि ब्रो जब तुम ये पैरामीटर देख रहे हो या एज अ वेब पेज देख रहे हो, व्हाट इज द मेंटालिटी दैट यू गाइस आर हैविंग, सो दैट फर्दर तुम्हारे ये दिमाग में ये टेस्ट केसेस बन रहे हैं। तो दैट्स हाउ आई वेंट विद इट। इट वाज नॉट लाइक कि अच्छा ब्रो तुमने ये पेलोड यूज कर दिया, बन गया, चलो मैं भी रिप्लिकेट करता हूँ। दैट्स मतलब मजा नहीं आ रहा था उसको, वो चीज में मजा नहीं है। तो लाइक आई स्टार्टेड टू, वन थिंग आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि ये फील्ड में भाई तुम्हारा पेलोड का चक्कर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी टू ब्रेक, लाइक वो एबनॉर्मलिटी कैसे क्रिएट करना है। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये फंक्शन है, ये एबनॉर्मलिटी, अगर ये चीज डाल के देखते क्या एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है बंद,
लाइक ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। तो दैट्स हाउ आई वेंट विथ इट। तो वहां से करते करते यार मेरे को लाइक जनरली बोलूँ तो एवरी सिंगल डे हाँ मजा आने लगा कि भाई अच्छा यार एक्सएसएस मिला, एसक्यूएल मिला, आरसी मिला, आरसी से क्या और कर सकते हैं, एसएसआरएम मिला तो उससे क्या कर सकते हैं, जो डेटा डंप मिल रहा है एसक्यूएल से उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हाँ तो वैसे करते करते दैट्स हाउ बेसिकली आई स्टार्टेड। फिर मैं शिफ्ट हुआ, मतलब आई लेफ्ट दैट जॉब, then went to ESEC Forte. ESEC Forte was a like huge turning point for me ओके because वहाँ पे the culture was all about hacking, हाँ not corporate hacking. It's all about fun वाला hacking. Like अच्छा ये मिल गया है bro, इसको और फोड़ते हैं। Like it's all about that mentality कि bro इतना access मिला है हमें और चाहिए। तो वहाँ पे डिलीवरी में। लाइक माइंडेड दोस्त, या एग्जैक्टली गेटिंग डीप इनटू इट। तो वहां पे मतलब बहुत लाइक माइंडेड लोग मिले हैं, बहुत ही ज्यादा। तो हाँ उनसे सीखा, फिर ऐसे करते करते देन आई क्लाउड से का ओपनिंग था, मैंने बोला भर देते देखते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड फॉर मी इन दी इन दिस एस्पेक्ट। इट्स ऑल अबाउट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं नौकरी के लिए कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट मोर और लेस मजा आता है करने में। हाँ ये वर्नेबिलिटी मिला, अरे भाई साहब ये कैसे हो गया, लाइक पॉपअप आ रहा है एक्सेस का पॉपअप, छोटा सा पॉपअप है क्या ही, हाँ मतलब हाँ। एक एचडी अगर इंटर्न एचडी देखता है बोलता है पॉपअप है क्या ही हो सकता है। वो उस पॉपअप से कितना कुछ हो सकता है। कितना हार्म हो, कितना कुछ हो सकता है, वहां पे मेरे को मजा आने लगा कि अच्छा भाई ये इस पॉपअप से इतना कुछ कर सकते हैं, कि इतना इतना हाई वर्नेबिलिटी हो सकता है। फिर स्टोर्ड एक्सेसेस वो अलग चीज है, वो अलग ही मजा है। बहुत। तो वो चीजों में मतलब उस चीज में हिट बनना लगा मेरे को, लाइक मेरे को मजा आने लगा कि अच्छा भाई ये सही किक है मेरे लिए। लाइक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड आउट फॉर मी। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माय पीयर्स, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जितने भी लोग मेरे को हेल्प किए है ये फील्ड में, उनसे बस मैं एक चीज सीखा हूँ कि भाई हैकर्स मेंटालिटी इज द बेस्ट मेंटालिटी। उससे बिल्कुल। ही मैं सब कुछ समझ पाया हूँ, उससे ही सब कुछ हो रहा है ब्रो। हम्म। दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। तो मेरा, मैं तो बोलूंगा कि भाई लाइक एट 2021 में बेसिकली स्टार्ट हुआ था हैकिंग वाला अच्छा। कैरियर मेरे ट्वेंटी लिए। ट्वेंटी वन से। तब मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। हाँ 2021 से मैं स्टार्ट किया हैकिंग करना, मैंने उससे भी। पहले तो ब्रो मैंने भी। मैं। मैं अच्छा 2020 कूल से। कूल कूल कूल। अच्छा 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 कूल कूल कूल। तो मैं बेसिकली वही कर रहा था कि 21 पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था मैंने भाई। मैंने बोला कि बहुत मजा आ रहा है, एक्सप्लोर करते हैं इसे, दबा के एक्सप्लोर करते हैं। हम्म। तो दैट्स इट, यही हुआ है मेरे साथ अभी। अभी तक एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि बोर बोर हो रहा हूँ। वही। जैसे तुम किसी भी एच डी रोल वाले बंदे से बात कर लो, इट डजेंट मैटर वेयर ही इज वर्किंग और शी इज वर्किंग, टू बी ऑनेस्ट उनके मुंह से एक ही जवाब निकलता है, भाई बोर हो रहा हूँ। तो इस फील्ड में भाई मैं अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ। तो मेरे लिए तो सॉर्टेड है मेरे लिए ये फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कल yesterday we had आदित्य सिंह ऑन द शो। एपिसोड 2 है वो। एपिसोड 2 आप जाके देख सकते हो जिन्होंने भी नहीं देखा है। एपिसोड हम्म 2 में आदित्य सिंह, ही इज़ अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड अ स्टार्टअप फाउंडर एज वेल ऑफ डार्क साइड सिक्योरिटी। तो उन्होंने, उनके साथ भी यही टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो किक मिलती है ना, किक जॉब रोल से, मतलब एक पेन टेस्टर हो गया, हाँ एक सिंपल बग बाउंटी हंटर हो गया, समझो सिर्फ बग फाइंड करता है और हम्म एक कंपनीज में पेन टेस्ट करता है। क्या किक मिलती है दोनों को अलग अलग। ये इसका काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये इसका काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। और सपोज करो वेरी कि ट्रू पेन वेरी टेस्टर ट्रू। है या बग बाउंटी हंटर है, साइड में फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये दोनों का वो किक नहीं हाँ मिलेगा ना अगर चेंज कर दिया। तो यही बात कर रहे थे हम लोग कल। तो सेम हम्म। चीज़ है, उनका भी वो बग बाउंटी हंटिंग में ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं, I initially started with pen testing and bug hunting as well. I हम्म। digged into pen testing and bugs very much in my initial days, but अभी मैं switch कर चुका हूँ क्योंकि वही किक मुझे नहीं मिल रही थी। यही पूरा मैंने हाँ डिस्कस किया ओके। है कल के वीडियो में, वी हैड बोथ ऑन द शो। तो यही मैं उनको भी बोल रहा था कि ये जो किक मिलती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लॉन्ग टर्म मुझे कोई वो चीज़ पकड़ सके, मैं उस पर काम कर सकूँ लॉन्ग हाँ टर्म में। हाँ नहीं तो मुझे स्विच करना होगा एग्जैक्टली। एट द मिडिल ऑफ द
टाइम जहाँ जहाँ पे मैं मेरा उम्र होगा शायद 35 40, अभी तब मुझे स्विच करना होगा हम्म। तो इट वुड बी डिफिकल्ट वेरी मच। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी हाँ ट्रू। वही ब्रो, वही जहाँ पे तुम्हें मजा आ रहा है उस पर वो बिल्कुल। वाला काम नहीं होता, वो फिर हाँ मजा आता है। फिर मज़ा वो आता है, करने में मज़ा आने मजा लगता आता है, है। एक बार मज़ा आ गया तो वही काम बन जाता है, वही पैशन, वही लाइफ, वही वेकेशन, सब कुछ। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी हम्म। ट्रू। ये यही ये तो बात चल है। रही थी। ये उनका भी यही था कि उनको एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर बग में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने डिफरेंट वो फील्ड्स ट्राई किए। फिर जाके उनका पेन टेस्टिंग में ही निकला, अभी बग हंटिंग वो शुरू करने वाले थे ऐसा कुछ कह रहे थे। और हम्म, मेरा क्या था, मेरा ना एक्सएसएस में जब मैं अटका ना, एक्सएसएस में मुझे ब्लाइंड हम्म। सोर्ड रिफ्लेक्टेड ये सब ना हाँ, मेरे दिमाग में मतलब घुसते घुसते ना फटने लगा था मैं, फटने लगा था, फट जाता मैं। हम्म। ये सब घुसने इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना तो मैंने हाँ, पढ़ना हाँ, छोड़ हाँ। दिया था, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था इसको, मतलब एक्सेसेस को मैं पकड़ता ही नहीं था, मतलब एक्सेसेस में मैं बग फाइंड कर रहा था, मैं बग्स फाइंड कर रहा था, मैं रिपोर्ट नहीं करता था उनको डर के मारे, मतलब ये घुसता ही नहीं था, अगर ये हो जाए मेरा वो ना एक ट्रॉमा जैसा बन गया था कि ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, फिर मैं हाँ, हाँ, डाइवर्ट हाँ। होने लगा उससे। फिर मुझे समझ आई कि मुझे ये पेन टेस्टिंग वाला छोड़ना पड़ेगा, बग बाउंटी हंटिंग भी छोड़नी पड़ेगी, हालांकि मैंने फाइंड किया है, बहुत सारे बग्स फाइंड किया, रिपोर्ट नहीं किया अभी। मैंने एंड्रॉयड में निकाला, हम्म, मैंने इन्फ्लेक्ट्रा पे निकाला, इन्फ्लेक्ट्रा का, हाँ इन्फ्लेक्ट्रा का मैंने उनको रिपोर्ट किया था, मुझे हॉल ऑफ फेम भी मिला हुआ है। तो ये मैंने हम्म। निकाला, फिर स्कूल के वेबसाइट्स में भी मैंने हम सभी करते हैं एक्चुअली, आपने किया स्कूल के वेबसाइट? मेरे दोस्त ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था। मैंने नहीं किया था, मैं तो सच, मैं थोड़ा अलग चीजों में थोड़ा मेरा फोकस था तो उस टाइम पे, तो ये सब चीजें नहीं किया था। बट मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बग फाइंड किया था कॉलेज के वेबसाइट पे। कौन सा वाला, कौन सा वाला? ओहो, उसने बिठा दिया था। सो बेसिकली व्हाट ही डिड कि उसको एक जगह पे ना, उसको लाइक व्हाट हैपेंड कि उसको एसक्यूएल में राइट एक्सेस मिल गया था भाई को। अच्छा अच्छा, ये तो एक्सेस, उसके बाद तुम एक्सेस समझ लो। एक बार समझा दो ये एक्सेस, सो सॉरी। ये एक बार समझा दो, ये एक्सेस समझा दो, एसक्यूएल का जो ये बग है, ये समझा दो फॉर द ऑडियंस। अच्छा, एसक्यूएल, एसक्यूएल इंजेक्शन, सो बेसिकली तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस सम काइंड ऑफ डेटाबेस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इजी टू डिप्लॉय तुम्हारा एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सब बेसिकली इन एसक्यूएल व्हाट हैपेंस दैट इट इज इजी टू फेच डेटा एंड शो इट ओवर द वेबसाइट की ब्रो, ये तुम्हारा डेटा है एंड दिस इज द काइंड ऑफ ग्रेड्स यू आर ग्रेडिंग, दैट्स हाउ द यूजुअल colleges go about it, right? So so what happened is that he was just looking into it, ऐसे ही देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो देखते देखते ट्राई कर रहा था एसक्यूएल के जो नॉर्मल पेलोड्स होते हैं, कॉलन और वन इक्वल्स टू वन, फिर हाइफन हाइफन करके ऐसे देख रहा था। तो वो करके अरे भाई साहब, यहाँ पे तो मेरे को सब कुछ मिल रहा है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसने देख लिया था क्या क्या चीजें हैं, उसने सब कुछ देख लिया था। फिर उसके अंदर दिमाग में आया कि ब्रो एक बार थोड़ा सा और कुछ, थोड़ा सा एलिवेट करके देखते हैं चीजों को। फिर वो अपडेट करने लगा। अपडेट का जो ऑप्शन होता है ना, कमांड होता है स्किल में अपडेट करने का, अपडेट दी सर्टेन रोज। तो उसने एक छोटा सा एक रो अपडेट करके देखा, फिर दोबारा उसने ये किया, तो बोला कि ये भी अपडेट हो गया भाई। फिर तुम समझ ही जाओ फिर उसने क्या खुराफाती दिमाग लगाया होगा। तो वो एक मैं समझ मतलब पा रहा हूँ। सही किक था, मतलब वो हम सब मतलब वापस आए, मैं अपने कॉलेज से आया, वो अपने कॉलेज से वापस आया। हम बैठ के बातचीत हो रहे ब्रो। उसने जब हमें बताया ना, हमने बोला कि ब्रो सॉर्टेड है, फिर तो सॉर्टेड है तुम्हारा कॉलेज लाइफ। बोलता है भाई एकदम। तो दैट्स हाउ दिस इज ऑल अबाउट, लाइक ये जो किक मिलता है ना भाई, ये लग करके लाइक अच्छा भाई ये कर सकते हैं, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो दैट्स दी फन ऑफ इट। तो कॉन्वर्सेशन हम कभी कभार बाहर कभी कभार मिलते हैं तो आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है कि रिसेंटली तो मेरे को ये बग मिला, ऐसे मिला, आउट ऑफ द ब्लू, कोई आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता। मे बी वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल,
आउट ऑफ द ब्लू एक बग के बारे में बात करने लग जाएंगे कि भाई एसक्यूएल ऐसे मिला था मेरे को एक जगह पे, एक्सएसएस यहाँ पे ऐसे मिला था, एसएसटीआई से ना ब्रो आरसी निकला था यहाँ पे। सो दैट्स हाउ द होल कॉन्वर्सेशन इज। तो ऐसे टाइप के मतलब मेरे सर्कल में ऐसे बातचीत चलती है। तो लाइक बग के ऊपर बात करना है, हाँ ठीक है ब्रो, कभी भी बात हो जाती है। हाँ, ऐसा सीन है। यही यही बात मतलब यही मैंने एसक्यूएल में यही सेम चीज़ मैंने भी फाइंड की थी स्कूल के वेबसाइट में। हम्म। तब मुझे रिपोर्ट करना नहीं आता हम्म। था, तो मैंने उतना वैसे अच्छा। रिपोर्ट नहीं किया था। और वो जो स्कूल का वेबसाइट था वो कोरोना के टाइम पे था, तो अच्छा। 2020 में। हाँ। तो तभी मेरा इनिशियल डे हम्म। है। उतना नॉलेज ही नहीं था मुझे कि बग मिलता है तो मुझे बग रिपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ। और रिपोर्ट का एक तरीका भी होता है, हम्म। देयर इज अ फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग। तो यस। ये यस। मुझे पता नहीं था, और वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का, थर्ड पार्टी कंपनी का यूज़ कर रहे थे क्लासेस लेने के लिए। तो ना उनके अच्छा। वेबसाइट पे भी मैं सेम चीज़ फाइंड कर रहा था, मुझे एडमिन एक्सेस मिल रहा था वो साइट का। तो अच्छा। मैंने उनको, और उसके ऊपर वो साइट का क्लिक जैकिंग अटैक भी मैं देख रहा था हो पा रहा है। अच्छा। तो मैंने उनको रिपोर्ट किया। फिर लास्ट में जब मुझे पता चला कि रिपोर्ट करना होता है और एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं, हालांकि वो मुझे तरीका तो अब भी वो थोड़ा थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग करता है तरीका। मतलब हम्म। एक होता है ना, मतलब सब कंपनीज का वो एक्सेप्ट नहीं करते वो। टेम्पलेट अलग होता है, हाँ हाँ, तो हाँ सबका सब कंपनी का वर्नेबिलिटी का जो एक्सेप्ट करते हैं उनका टेम्पलेट हाँ ऑब्वियसली अलग ही होता है। हाँ। तो वही, तो मुझे जब पता चला मैंने उनको व्हाट्सएप में लिख के भेज दिया, सर देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, सो एंड सो वल्नरेबिलिटी, और इसका ये हार्म हो सकता है आपका कंपनी में, आपका साइड में। तो मैंने स्कूल को नहीं किया था, पर वो थर्ड पार्टी को कर दिया था इनके बारे में। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैंने कहा कि अगर तब मुझे वो एक किक मिल रही थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर पा रहा हूँ मैं, मुझे ये करना चाहिए। अगर कुछ और प्रॉब्लम दिखी तो मैं हम्म। बताऊंगा। ऐसे मैं बोला था, यू कैन रीच आउट टू मी इन केस इफ़ यू नीड एनी अदर सिक्योरिटी हेल्प, मैंने कहा था वो। तो उनका हम्म। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग द वल्नरेबिलिटी, विल लुक इनटू इट। फिर जब मैं डिग इनटू कर रहा था, तो तब मुझे ये एक्सेसेस पे मैं आके रुका। तो ये एक्सेसेस मुझे इतना हॉन्ट कर रहा था ना तब भी उसके उस वक्त। तो मैंने बग बाउंटी पेन टेस्टिंग से एकदम छुट्टी ले ली। फिर अभी आई हैव स्विच्ड माय नहीं, एक एक बग फोकस। एक एक बग कैटेगरी कैटेगरी ऐसा होता है कि हाँ, उसमें दिमाग बहुत ज्यादा खपता है। बहुत 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 ज्यादा खपता है। एकदम खिचड़ी बन गई थी पूरी एकदम। एक्सेसेस, हम्म। हाँ। मैंने ऐसा नहीं है कि एक्सेसेस में काम नहीं किया, एक्सेसेस मैंने काम किया है, 40+ मैंने पेलोड्स बनाए भी है। पर वो चीज़ अलग है, हम्म। वो अलग चीज़ है, अलग वो मतलब शौक में बनाई थी। जब मैं इम्प्लीमेंट करने हम्म। लगा ना, जब जानने लगा इतना भी होता है, इतना वेरिएशंस होते हैं, ऐसे ऐसे हाँ हाँ काम कर हाँ। सकते हैं, तो उड़ गया मेरा दिमाग एकदम से। एग्जैक्टली हाँ, उसका जब तुम्हें एक बग टाइप पता चलता है, लेट इट बी एसएसआर है, हाँ एसक्यूएल, इनके जो सब कैटेगरीज होते हैं इसके ऊपर, तो मतलब जैसे तुम फाइंड करते रहते हो कि अच्छा एसएसआरएफ, ब्लाइंड एसएसआरएफ भी होता है, फिर तुम्हारा ब्लाइंड एसक्यूएल होता है। ब्लाइंड एसक्यूएल से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो हाँ जब तुम पता लगाते हो, दिमाग मतलब ये हो जाता है कि फट जाता है कि ब्रो, ओके ब्लाइंड एसक्यूएल से भी इतना डाटा डाटा ये निकाल सकता हूँ मैं, डैम। वहां से वो निकलता है, वो अलग ही किक होता है कि इतना सा करो बट उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है ना, वो जब इम्पैक्ट पता चलता है वो अलग किक मिलता है। यही बात। तो मैं अभी फ़िलहाल तो स्विच कर चुका हूँ, मतलब साइबर साइबर सिक्योरिटी में ही हूँ। मतलब डोमेन थोड़ा, सब डोमेन हम्म। थोड़ा मैं टर्न ले चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताऊँगा। मैंने ये कल भी कहा था, तो मैं बाद में हम्म। आपको बता दूंगा मैं किस फील्ड पे हूँ अभी। पर अभी उस हम्म। चीज़ से थोड़ा छुट्टी लिया हुआ है। अगर फ्यूचर में कुछ हम्म। जानकारी चाहिए होगी तो मैं आई कैन ईजिली डू दैट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट हाँ, अभी थोड़ा वो है, मेरा पास जैसा है वो अभी। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो कंपनी है क्लाउड सेक, हम्म। हम्म। कंपनी के हाँ बारे जी। में बताओ। कंपनी क्या काम करती है स्पेशली? ब्रो कंपनी का काम, मैं मैं बताऊँ तो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन। उनका एआई बेस्ड
So basically, the main magical funda that I found in CloudSec is that they have incorporated two very hot topics together: AI with cybersecurity. So like they अच्छा. have mixed machine learning, AI, and cybersecurity together. So that's the real fun of it. तो बेसिकली इनका काम एक तो इनका काम होता है कि लाइक एक एक सिंगल काम है एंड दे डू इट वेरी एफिशिएंटली दैट इज टू लेट द clients know what kind of threats they can be faced. Like for example, external threat उनका कितना है, उनका कितना डेटा बाहर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके थ्रू उन्हें हार्म पहुंचा सकती है. लाइक देयर आर सम आपको फोरम्स होते हैं जहाँ पे डेटा लीकेज होता है. हम्म. कभी कभार डेटा डंप किया जाता है. लाइक बोलते हैं कि लाइक देयर आर सर्टेन प्राइजेस टू इट कि ब्रो अगर इफ यू वांट दिस कंपनीज डेटा यू विल गेट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ डेटा जो यूजुअली क्रेडेंशियल्स लीक होते हैं. तुम्हारे गिटहब पे जो हार्ड कोडेड एक्सेस की पड़े रहते हैं ये सारे आपका एक्सटर्नल थ्रेट्स हो जाते हैं राइट. उसका कोई आपका इंटरनल एसेट या वो सब की जरूरत नहीं पड़ता. एज अ एक्सटर्नल अटैकर आप यही देखते हो कि कहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और वो इन्फॉर्मेशन को कितना मैं एलिवेट कर सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मिलके. तो ये काम क्लाउड से बहुत अच्छे से करता है. लाइक इट इज लाइक ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड. लाइक वेब स्क्रैपिंग है. डार्क वेब पे जाके वो फोरम स्क्रैप आउट करते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट का कुछ डेटा लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसका क्लाउड स्कैनिंग है. वो सब इनका ऑटोमेटेड है. एंड द मोस्ट astonishing पार्ट इज दैट इनका फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत कम है. अच्छा. फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ही कम है. आउट ऑफ लाइक क्या वो मतलब आई एम गिविंग एन एस्टिमेट. out of 1,000 vulnerabilities, there might be 4-5 false positive. ओके. इनका ऐसा है लाइक फैबुलस. इनका जो लाइक फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ही कम है. सो दैट्स व्हाई लाइक इनका जो सिस्टम है लाइक द वे दे हैव इंटीग्रेटेड AI with the aspect of cybersecurity, in especially the in domain of cybersecurity, it's really crazy. And जो हमारा founder है राहुल भाई वो like he's like first one to come into the office and last one to go from the office. हम्म. And I have been seeing this from like it's been more than a month over here. And bro, I have seen this. That guy has a like undying like वो बोलते हैं ना कि it's like he breeds cyber security. सुबह सबसे पहले आएगा सबसे लास्ट में जाएगा and he's all about cyber security. हाँ, he's And also a like cybersecurity उन expert. yeah. हम्म. He had a career before starting CloudSec. क्लाउड से को कितना साल हुआ है वैसे? नया है? Uh, मेरे ख्याल से तो नहीं है. नया तो है आई थिंक इट्स अराउंड आई माइट बी रॉन्ग 2015 से स्टार्ट हुआ है. हाँ, मे बी क्योंकि मैं बहुत दिनों से या सुन रहा हूँ क्लाउड तो सेक के बारे में. I mean, it's fairly new. It's fairly very new to this. It's a very new company to be honest. हम्म. Like बहुत पुराने पुराने players are there in this particular field, but it हम्म. is very new. But जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया and the way they are delivering it, it's like really commendable to be honest. हम्म. Maybe we would have him on the show someday. है यार. हाँ. I hope to bro. या. और मृगांका एक कल भी मैंने आदित्य से भी ये सेम क्वेश्चन की थी. आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन ऑल्सो कि बग बाउंटी में आपका फेवरेट बग कौन सा है और कंपनी किस पे Bro, अगर हंट करते थे या करते हो या की है कभी भी तो आपका फेवरेट कंपनी कौन सा है और अगर नहीं किया है तो आप किस में प्रेफर करोगे करना? ब्रो मैं बग बाउंटी तो नहीं करता हूँ. अच्छा. मैं बग बाउंटी तो नहीं करता हूँ. बट कंपनी आई थिंक अगर कोई बग बाउंटी हंटर
देख रहा है या मतलब इज एस्पायरिंग टू बी वन, तो आई थिंक कि कंपनी स्पेसिफिक रादर देन ना होके आई थिंक उनको लाइक एक समझ समझ लाइक अब hacker, the moment a hacker gets to understand the mentality of a particular developer ना, उसको फिर हंट करना बहुत इजी हो जाता है। हम्म। तो बिल्कुल उस बिल्कुल सही कहा उस आपने। चीज को ना, वो चीज आई थिंक कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। आई मीन अगर तुम कोई भी दूसरे कोई भी कंपनी उठा लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट दैट यू आर टेस्टिंग। जब तक तुम्हें प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हें उसका डेवलपर का मेंटालिटी समझ में नहीं आ रहा कि वो कर कैसे रहा है, कर क्यों रहा है, तो तब तक तुम्हें बग ढूंढने में मुश्किल होगा। द मोमेंट यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये ऐसे नॉर्मल क्रिएचर यूज कर रहा है, इसका कोड ये इस तरीके से डेवलप कर रहा है, इस तरीके के दैट्स द tech stack that he's using. He is more inclined to certain tech stack, और ये tech stack are quite vulnerable। तो वहां से वो तुम मैप आउट कर सकते हो कि हाँ अच्छा, दूसरा कोई इसने इस कंपनी ने दूसरा कोई प्रोडक्ट निकाला है, इफ दैट पर्टिकुलर डेवलपर इज वर्किंग ऑन इट, फिर तो लाइक इफ यू गेट अ हैंग ऑफ दैट डेवलपर्स मेंटालिटी कि वो बंदा कर कैसे, कोड कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो तुम कोई भी एसेट फोड़ दोगे। जिस जिस जगह पे उस कोडर या जो डेवलपर है उसने काम किया है, तुम फोड़ दोगे, क्योंकि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बंदा ऐसे ही काम करता है। देयर आर सर्टेन लूप होल्स, तुम में भी है, मेरे में भी है, हर एक डेवलपर में कुछ ना कुछ लूप होल्स है, हर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में कुछ ना कुछ कोई ऐसे, जैसे कि तुमने बोला तुम्हें एक्सरसाइज में एक लाइक अंदर ही अंदर एक डर सा होता है कि हाँ। एक्सरसाइज वाला क्या है सीन। मेरे पास भी एक बग कैटेगरी है जिसमें मेरे को भी बहुत सोच समझ के मैं करता हूँ, अगर क्या करता है भी वो हूँ बग तो। कैटेगरी क्या है? एक्स एक्स ई है, एक एक्स एक्स ई हाँ। है, तो यूजुअली मैं करता नहीं हूँ। मतलब मेरे को ऐसा सी लगता है कि मतलब उसका फंडा समझ में बहुत मुश्किल आता था। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को बिठाया कि समझाया मेरे को कि एक्स एक्स ई क्या होता है, एंड लाइक अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड बेटर इन डेप्थ। और तो सबका एक एक कुछ कुछ तरीके होते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, कुछ कुछ डेवलपर्स के मतलब वो बोलते हैं ना सिग्नेचर्स होते हैं कि ये बंदा ऐसे ही डिक्लेयर करता है चीजें, बंदा ऐसे ही कोड करता है, ऐसे ही चीजों को रखता है, उसका मैपिंग जो होती है वो बंदा ऐसे ही करता है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपर ही इज एंड जस्ट व्हाट लाइक अ काइंड ऑफ स्क्रम आर्टिस्ट। टेंडेंसीज ही हैव। या यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कर कैसे रहा है, कर क्यों रहा है, और कर कैसे रहा है, दैट्स इट। वो इट डजेंट मैटर कि कौन सा कंपनी का तुम कौन सा कंपनी में तुम ट्राई कर रहे हो बग हंट करने का। इफ यू गेट एन हैंग ऑफ इट कि अच्छा इसका ये सीन है, मतलब इसका ये टेंडेंसीज है, तुम फोड़ दोगे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी एसेट हो, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट एंड यू विल फाइंड लेजिटिमेट गुड बग्स इन इट। हम्म। सवाल तो बहुत सिंपल था मगर आपने बहुत डीप आंसर दिया है। आई लव्ड इट एक्चुअली। बहुत बहुत डीप था ये आंसर। प्रोग्रामर को समझ के फिर हंट करना या तो फिर बग को फाइंड करना। दिस वाज ग्रेट। और आई मीन यू गेट हैंग टू इट। लाइक तुम हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट उठा लो जो लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट उठा लो, उनका फंडा ये है कि कस्टमर को बेचना है सामान वहां से। हम्म। अब तुम वहां पे बैठ के तुम ये देखोगे कि भाई जो प्राइजेस है वो टैम्पर हो सकती है नहीं हो सकती, तो ये तो देखोगे ना। हाँ बिल्कुल। ऐसे करते करते वो चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी कि भाई ये बंदा कर कैसे रहा है, अगर फंक्शन यूज कर रहा है, अगर सैनिटाइज कर भी रहा है, इनपुट सैनिटाइजेशन हम्म। कर कैसे रहा है, किस टाइप का एनकोडिंग यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें हर एक एनकोडर, हर एक डेवलपर का ना एक कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। एक फेवरेट तरीके से वो इनक्रिप्ट करते हैं या कुछ डिक्रिप्ट करते हैं, हैशिंग अलग तरीके से कुछ कुछ यूज करते हैं। स्टैंडर्ड तो सबका होता है, हर एक चीज का स्टैंडर्ड है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन वैरी हो सकता है, राइट। बिल्कुल। अगर तुम कोई भी एक वीक वीक हैशिंग एल्गोरिथम भी उठा लो, बट एक्सपीरियंस डेवलपर है, उस पर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज कर लेगा। द मोमेंट उसने सॉल्ट यूज कर लिया, तो अब बंदा हैकर अगर उसका तोड़ने की भी कोशिश करता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेशनल पावर। हम्म।
ये आपका एक अलग तरीका का इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, ही इज कंस्ट्रेन्ड बाय दैट कि उसको वीक हैशिंग एल्गोरिदम ही यूज करना पड़ेगा ड्यू टू वट एवर रीजन। बट उस चीज को वहां पे उसने कैसे खेला कि चल कोई बात नहीं, आई हैव टू यूज अ बैकडेटेड एल्गोरिदम, बट व्हाट आई विल डू इज लाइक हैशिंग एल्गोरिदम यूज कर रहा है पर उसमें सॉर्टिंग यूज कर दूंगा। अब पता नहीं चलेगा, लाइक तुम्हारा लेवल 1 से 10 छठ से ऊपर चला गया द मोमेंट ही यूज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हाँ। राइट। तो वो चीजें समझनी पड़ती है कि भाई डेवलपर चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, और रिक्वायरमेंट्स क्यों है इस चीज का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, बट क्या हुआ कि एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉ था कि वहां पे क्या हुआ कि मेरे को ये चीज समझ में आ गया कि डेवलपर ने जो तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, उनका खुद का वॉलेट था, ठीक है, उनका खुद का वॉलेट था। व्हाट हैपेंड इज दैट, so basically what happened he like a customer was able to transfer certain amount of money from his bank account to his own wallet, ठीक है। तो वहां पे क्या कर पा रहा था मैं कि द मोमेंट द रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, वहां पे अगर मैं लाइक उसने कस्टमर ए ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को एक्स अमाउंट अपने बैंक से मेरे वॉलेट पे चाहिए, उसने वो रिक्वेस्ट कर दिया। द मोमेंट इट इज कमिंग रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया, जो अकाउंट जो तुम्हारा वॉलेट का अकाउंट है ना, उसमें क्या किया मैंने, बस अपना अकाउंट डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया इसमें, पूरा पैसा मेरे पास आ गया। इतना कुछ हार्ड था नहीं, बट मेरे को ये छोटा सा मतलब सिंपल सा बग है हमारे लिए, राइट, तुम्हारे लिए मेरे लिए बहुत सिंपल बिल्कुल सा बग बिल्कुल। है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हो सकता है, तो वो चीज का तुम्हें वो होना चाहिए कि बंदा अगर कर रहा है क्या इसने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, वो चीजें देखनी होती है बस। मतलब इफ यू गेट एन हैंग हैंग टू दैट प्रोडक्ट ना, कि अच्छा भाई समझ में आ गया ये प्रोडक्ट ये है, अब इसके एबनॉर्मलिटीज मेरे को निकालना है, तब तुम फोड़ दोगे ब्रो। दैट्स दैट्स माय पर्सनल अप्रोच टू एनी पेन टेस्ट दैट आई डू फॉर एनी ऑफ द क्लाइंट। तो मैं बस प्रोडक्ट समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो वेब एप्लीकेशन है या एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या कोई भी दूसरा उनका कोई भी दूसरा हो, सोर्स कोड रिव्यू भी होता है, तो जस्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका एंड गोल क्या है, ये जो मेरे को दिया है ये जो प्रोडक्ट है, इसका एंड गोल क्या है, ये चाहते क्या है, इसे प्रोडक्ट कर क्या रहा है। अगर मेरे को वो चीज समझ में आ गया, देन इट्स हैकिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एबनॉर्मलिटीज, फिर तुम चालू हो जाओ। हम्म। वाह, मतलब बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। तो थोड़े पर्सनल लेवल पे आते हैं। हम्म। बर्नआउट्स, आप बर्नआउट से कैसे डील करते हो? ब्रो मैं अगर सच बोलूं तो बहुत टाइम हुआ है कि बर्नआउट फील हो रहा है कि भाई चले, मतलब एक बग मिल नहीं रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। फिर मेरे को लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग दैट किक, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी फुटबॉल खेलने चला जाता हूँ, या तो CS2 खेलता हूँ। तो CS2 या फुटबॉल तो मेरे लिए भाई, मेरे लिए मेडिसिन है। मैं एक सेशन बैठ जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, इट विल गो एज लॉन्ग एज 3 घंटा 4 घंटा CS2 में। वो खेलने के बाद मतलब वो दिमाग से ना वो चला जाता है कि अच्छा मेरे को कोई दिक्कत है। तो फिर मैं दोबारा उस चीज को लेके बैठता हूँ, तो एक न्यू प्रोस्पेक्टिव मिलता है मेरे को कि अच्छा मैं ये चीज मिस कर रहा था, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। कभी कभार होता है ना, इफ यू स्लीप ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू गेट अ वेरी न्यू प्रोस्पेक्टिव ऑन दैट प्रॉब्लम, राइट। ऐसा होता है, बहुत बार दिमाग होता है खुलता है, फ्रेश होता कि है, अच्छा फ्रेश वो ये ऐसा, हाँ रहता है। एग्जैक्टली फ्रेश होता है कि दिमाग खुल जाता है कि हाँ। अच्छा ये इसको ऐसे करके देखता हूँ। तो दैट्स हाउ यूजुअली आई डील होता है। हाँ एक बार हुआ था कि बहुत लंबा बर्नआउट फील हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था करने का, बग वग ढूंढने का कुछ मन नहीं था। ऐसा बहुत बार मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पीरियड वैसा हो रहा था। तो यूजुअली मैंने क्या किया कि मेरा जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था, तो मैंने उनको बोला कि आई एम एक्चुअली फीलिंग बर्नआउट, तो मेरे को थोड़ा सा लाइक आई नीड कपल ऑफ डेज ब्रेक। तो उस ब्रेक में मैंने क्या किया कि आई वेंट खीर गंगा फॉर अ ट्रैक। कहाँ पे, कहाँ पे? वहां से खीर गंगा, खीर अच्छा अच्छा, गंगा, हाँ। खीर गंगा गया, वापस आया एकदम फ्रेश रिफ्रेश्ड एकदम। फिर मैं दोबारा काम पे वापस लग गया।
सो मेरा मेरा फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स बर्नआउट इज दैट एवरीवन फील्स इट, बट मेरे को अगर मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दूं, जिस एनवायरनमेंट में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, वो एनवायरनमेंट छोड़ के मैं दूसरे एनवायरनमेंट में जाके मस्ती कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, फन टाइम विथ माई पीपल, तो वहां पे जाके ना मेरा पूरा बर्नआउट वाला जो सेंसेशन है कि लाइक ब्रो काम नहीं कर रहा, मत था मतलब व्हाट आई एम सपोज टू इवन डू, दिस इज लाइक इट इज गेटिंग वेरी लाइक heavy on my head, like I'm not able to understand, वो एक होता नहीं है कि you feel a pressure on your shoulder हम्म। that is not working out, तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है, लाइक अंदर ऐसे होता करके है गायब वो हो दिन जाती है। पूरा, चुभते रहेगा एग्जैक्टली सारा exactly. दिन। एग्जैक्टली वो फिर हल्कापन लगता है जब तुम दोस्तों के साथ हैंग आउट करके आते हो या हाँ। घूम के आते हो ना, तो एक वो होता है कि वाह ठीक है, वो हल्कापन महसूस होता है, लाइक लेजिट यू कैन फील दैट कि वो प्रेशर नहीं है, दोस्तों के साथ बातचीत कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया, खेल लिया, वो एक होता है। तो मैं यूजुअली दैट्स हाउ आई यूजुअली डील विद इट, लाइक मेरा बर्नआउट से डील करना बहुत ज्यादा रैंडम होता है, बट ये एक चीज कांस्टेंट है कि मैं दोस्तों से मिल लेता हूँ, एंड दोस्तों से मिलके हम रैंडम कुछ ना कुछ प्लान बना लेते हैं। तो दिल्ली में होता था तो कभी कभार रात को मतलब रात को मिले, चल गुलाटी से आते हैं, तो गुलाटी इज अ वेरी गुड लाइक रेस्टोरेंट, तो वहां से खा हाँ। के आते हैं चल, या तो सीपी चले गए, सीपी में थोड़ा इनर सर्कल घूम के आ गए, तो वैसा ही होता था, या तो किसी दोस्त के घर जाके पार्टी वार्टी करके आ गए। तो दैट्स हाउ आई यूजुअली गो अबाउट विथ बर्नआउट phases in my life. लड़कों का तो यही है, बाइक से निकले, वो रील रील आजकल बहुत वायरल होती है कि 5 मिनट बोल के निकला था, मनाली पहुंच गया। आ, भाई हमारे केस में तो यही हुआ था कि रात को एक बार हम बोले कि जब मिलते हैं हम सब, आधे घंटे के अंदर प्लान बना कि मूर्थल चलेंगे, हाँ। आधे के अंदर आधा घंटा फिर हम गायब थे, पूरे रात हम गायब थे, हम मूर्थल पे बैठ के खाना वाना खाया, फिर सुबह के 5:30-6 बजे मैं घर वापस आया। ऐसा इम्प्रॉम्प्टो प्लान बनता है, ऐसा इम्प्रॉम्प्टो प्लान बनता है एकदम कभी भी कुछ भी। तो मेरा एक दोस्त फरीदाबाद रहता है, ऑफिस से निकले ऐसे ही मजाक मजाक में, चल यार खाने चलते हैं, खाना खाते खाते 12-1 बज गए, अरे 8 बजे निकले, एक घर घर मैं घुस रहा हूँ 1 बजे, तो दैट्स हाउ थिंग्स गो इन ये बहुत माय बहुत लाइक इन कैजुअल है माय ये ग्रुप। लड़कों के लिए। बहुत ज्यादा एक्चुअली। हम्म। ओके प्रियंका, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे। um, श्योर। जो भी अभी न्यू कमर्स है साइबर सिक्योरिटी के, हम्म। जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब एकदम न्यू कमर है, मतलब साइबर सिक्योरिटी पे हाँ हाँ। इंटर हो रहा है और हो रही है, हम्म। तो आप हम्म। उनके लिए कोई एडवाइस आप अगर देना चाहो। मैं भाई द ओनली एडवाइस इज दैट mentality develop a hackers mentality, that's the extent of it। हम्म। तुम सीख जाओगे वर्नेबिलिटी ढूंढना, सब कुछ सीख जाओगे, पर अगर इफ यू डोंट हैव दैट हैकर्स मेंटालिटी ना भाई, फोड़ना है, इस चीज को फोड़ना है, कैसे भी फोड़े वो मेरे ऊपर है, पर फोड़ना है। तो दैट्स अ मेंटालिटी, दैट्स अ हैकर्स मेंटालिटी, ये मेंटालिटी तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे बंदे मिल जाएंगे जो तुम्हें बहुत मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बग्स तुम्हें सिंपल तरीके से समझा देंगे। हम्म। जैसे कि आप। टूल्स मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे टॉम टॉम नॉम नॉम है, हाँ हाँ हाँ। उसके ऑटोमेटेड टूल्स इतने प्यारे हैं, तुम आधा काम तो वही निपटा देता है। हाँ हाँ। सब डोमेन एनुमरेशन तुम्हारा, फिर HTTPX तुम्हारा इतना अच्छा टूल है, लाइक तुम्हारा वर्क फ्लो में अगर तुम इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, लाइक हाँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट विल हेल्प यू आउट विद द लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, बट द मेंटालिटी एंड द नैक टू नो अबाउट समथिंग, वो तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हें बस इतना चाहिए इस फील्ड में हम्म। कि तुम्हारे अंदर से वो कीड़ा आना चाहिए कि भाई फोड़ना है। इफ यू हैव दैट कीड़ा इनसाइड यू दैट आई हैव टू like break this stuff that is over the internet and I want to break it, like वो एक मेंटालिटी होनी चाहिए। फिर वो मेंटालिटी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होते होते दिमाग में तुम्हारा माइंडसेट बैठ जाएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल के देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स देता है देखता हूँ,
उस रिस्पॉन्स से फिर तुम दिमाग में और टेस्ट केसेस बनाना चालू करोगे। साइबर सिक्योरिटी फील्ड मतलब तुम्हारा, मैं किसी भी न्यू कमर को एक चीज बोल सकता हूँ, इसमें भाई तुम थ्योरी पढ़ लो जितना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम्हें हैंड्स ऑन नहीं आता ना, तुम कहीं पे कुछ नहीं ये कर सकते। इट्स ऑल अबाउट हैंड्स ऑन, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। द मोमेंट यू हैव द हैकर्स माइंडसेट एंड द वर्क एथिक कि अच्छा मेरे को ये करना है, इसका ये स्टेप्स है, ये बेसिक फंडा है। जैसे कि पोर्ट्सफिगर बहुत अच्छा रिसोर्स है, कोई अगर वेब सीखना बिल्कुल चाहता है, वेब हैकिंग सीखना बिल्कुल। चाहता है, पोर्ट्सफिगर से अच्छा कोई रिसोर्सेज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हम्म। पोर्ट्सफिगर का जो लैब्स है, सारे सारे लैब्स एक बार देख लो, एक्सपर्ट वाले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट जो नॉर्मल इजी वाले हैं वो सारे एक बार सॉल्व कर दो। हाँ देख के सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, इतने सारे सोल्यूशन है, हाँ हाँ वो देख के सॉल्व कर लो, पर तुम्हें फंडा समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहा है, हो कैसे रहा है, क्या सीन है। हाँ। द मोमेंट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि चल कैसे रहा है, देन वो तुम्हारे अंदर ना वो मेंटालिटी धीरे धीरे सीप इन करने लग जाता है कि अच्छा ऐसे चलता है, तो अगर मैं इसको ऐसा डालूंगा तो ये ऐसा मेरे को अटपटा रिस्पॉन्स देगा, इस अटपटे रिस्पॉन्स से मेरे को फर्दर में क्या इनुमरेट करके इस चीज को एस्केलेट कर सकते हैं। यही है पूरा गेम साइबर सिक्योरिटी का। बिल्कुल। तो मैं मेरा बस एक ही सजेशन है कि ब्रो जस्ट डेवलप दी माइंडसेट। हैकर्स मेंटालिटी एंड वर्क एथिक अच्छा वैसा होना चाहिए, लाइक वर्क एथिक ऐसा इन द सेंस कि वो तुम्हारा लाइक सेकंड टू नन नेचर हो जाना चाहिए कि मजा आ रहा है ढूंढने में। हम्म। You have to enjoy it. If you're not enjoying it, you it would be very hard for you to like टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस फील्ड में। इट वही इज वही। नॉट रियली कि डीबग कर लिया हो गया, नहीं ऐसे डीबग नहीं होता है। नहीं होता डीबग, कहीं नहीं मिलेगा। स्टैक ओवरफ्लो काम नहीं आएगा ब्रो, अगर तुम हैक कर रहे हो तो स्टैक ओवरफ्लो पेलोड्स बनाने के लिए बहुत अच्छा चीज है, बट किसी वेब एप्लीकेशन को समझने के लिए स्टैक ओवरफ्लो या चैट जीपीटी तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। वही वही। यू हैव टू डिग इनटू इट वो चीज वेरी करना मच। पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा उसमें एग्जैक्टली exactly. बहुत। हाँ, हाँ। यही मतलब मेरा तो यही सजेशन है ब्रो। Great, great, great. Mriganka, we had a very great and deep conversation actually. I would love to have you on my show once again. या श्योर ब्रो, आपका व्हाई नॉट। मैंने देखा कि आपका वो है डेवलपर्स साइड पे भी बहुत नॉलेज है ऐसा मुझे लग रहा है ऐसे। ब्रो टू बी ऑनेस्ट एक टाइम पे करता था, एक टाइम पे मैं हाँ दबा के डेवलपिंग करता था, हाँ लाइक हाँ। सॉलिडिटी पे भी काम किया है, फ्रंट एंड बैक एंड पे भी काम किया है। तो यही फिर चीज़। मैंने आई स्विच टू हैकर्स, सो हैकर्स मेंटालिटी। यही हाँ। तो यही चीज़ पे मैं आपके साथ दोबारा आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई शो विद दैट डेवलपर्स माइंडसेट दिस टाइम। डेवलपर्स के लिए श्योर। मैं शूट करना चाहूँगा आपसे, हम्म। बातें करना चाहूँगा फॉर द डेवलपर्स हाउ दे कैन बी अ सिक्योर डेवलपर और अ सिक्योर कोड डेवलपर। तो बस यही है। ये बहुत ही डीप कन्वर्सेशन रहा है और आई फेल्ट वेरी गुड टॉकिंग विथ यू एंड यस, बस लाइकवाइज ब्रो, लाइकवाइज। ये मैंने जो सोचा था जिस लेवल पे होगा उससे बहुत ज़्यादा बहुत गहरा गया है ये। और या दैट्स इट। थैंक यू। Cool थैंक्स bro. फॉर I कमिंग। also enjoyed I also enjoyed this conversation with you bro. Totally loved it. थैंक यू माय प्लेजर माय प्लेजर। ओके। Yeah bro.